I decided that let me be someone who achieves a lot in lot of spheres of life and then help lakhs and lakhs of people to achieve that. So therefore my moral duty is of course giving back to the society, creating an ecosystem wherein I can help a lot of people to grow, to achieve more and more. And then the $1 million statement that a lot of people say that we should change, but we should not change. It is not about change, it is about #evolve. तो कैसे पहले ऐसा बोला जाता था कि दो तरह के लोग हैं, एक होता है कांट डू, एक होता है वोंट डू. सो कांट डू मतलब क्या कि करना है पर नहीं कर पा रहा, तो उसको हम ट्रेन कर सकते हैं, वो ओपन माइंडेड है, वो ग्रो करेगा लाइफ में. एक होता है वोंट डू मतलब आता है पर नहीं करूँगा, एटीट्यूड प्रॉब्लम. अभी ये तीसरा वर्ड इन्वेंट हुआ है, कांट डू वोंट डू डू. तो ये तो एक्चुअल में ये लोग डू है कि वो कंपनी का इंटरव्यू लेते हैं, वो कंपनी को बोलते हैं कि यार मैं तो मंडे टू फ्राइडे काम करूँगा. अरे भाई तो तू एंटरप्रेन्योर बन जा, क्योंकि कंपनी बोल रही है उसको कि मेरे वहाँ 100 का स्टाफ है, हमारा मंडे टू सैटरडे वर्किंग है, हम 10 से 7 काम करते हैं. ठीक है, तो उसको ऐसा बोलना चाहिए कि ठीक है सर आई रिस्पेक्ट यू बट मैं फिट नहीं हो रहा, थैंक यू. अब वो सिखा रहा है कि नहीं ऐसा थोड़ी है सर, मैं तो मंडे टू फ्राइडे आऊँगा, 10 से 5 आऊँगा. और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि कंपनी उसके लिए पूरा उसका एम्प्लॉय रूल बुक चेंज कर ले. सर मैं तो टी शर्ट पहन के आऊँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा, मेरा जेडी मैं खुद बनाऊँगा. अब वो हो सकता है, तो पर कैसा है कि वो उस ट्रेंड सेटर जब बनेगा तब ऐसा होगा, और वो ट्रेंड सेटर तब बन पाएगा जब वो we have observed in HR that you need to be very patient, you need to have that optimistic approach, and you need to build connections with your team members, with all the people in the company. And I guess उन्हीं चीज को दिमाग में रखते हुए I have asked you these questions, and now I want to get into more of technical side. और पूछना चाहूँगा कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस क्या होता है. दैट्स द मोस्ट स्टूपिड कॉन्सेप्ट आई हैव एवर कम अक्रॉस, एंड आई थिंक दिस इज टू बी हाईलाइटेड इन दिस पॉडकास्ट. तो स्किल कब बढ़ेगा? जब तुम इम्बैलेंस करोगे, जब तुम एक्स्ट्रा आवर्स खुद के इवोल्यूशन के लिए डालोगे. अब वो तुमको करना नहीं है, तुमको काम करना है तो 8 घंटा, तुम्हारी स्किल तो ये, पर हर महीने 30% इंक्रीमेंट चाहिए, हर साल 30% इंक्रीमेंट चाहिए. तो लॉजिक तो बिठाओ, मुझे समझ नहीं आता कैसे होगा. चाहिए इज वॉट यू डिजायर, बट डू यू डिजर्व? मुझे भी कैटरीना कैफ से शादी करनी थी, बट डू आई डिजर्व दैट? नो, आई मे नॉट, आई मे जस्ट डिजर्व माई वाइफ. सो डिजर्व और डिजायर में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस तभी पूरा होगा जब Welcome Hemal sir, welcome to Kya Hal Chal podcast. And yes, the very first question of our podcast is, what's your hal chal? Yeah, I'm doing absolutely phenomenal. Wow, the energy in the answer, I'm loving it. And I guess हमारे podcast में जब भी किसी का हाल चाल हम जानना चाहते हैं, the first thing that we conquer is energy. The first thing that comes in our way is energy, and वो एनर्जी हम देख ही सकते हैं. So I'm very excited for this podcast. Today this podcast is going to be very special because we are having our gifting sponsors, Bazogi Perfumes, who are having a very great range of perfumes and fragrances, which I'll suggest every one of you to use because it's amazing, it smells amazing, it feels amazing, and yes. And आज के podcast पे we are going to do something different because today we are having diaries and pen with us. And we'll be trying to get to know each other on a deeper level. We'll be trying to understand each other professionally. और साथ ही साथ हम थोड़ा एक दूसरे को personal level पे भी जानने की कोशिश करेंगे. So what's the exercise that we're going to do? Well, for that you'll have to stick to the episode. So without any further ado, let's get into it. So human resource has been like one of those buzzwords in the corporate industry, and जिसको हर कोई crack करने की कोशिश कर रहा है from the very beginning, especially after the point where human resource was not just a specialization, but humans and the company's employees were considered as one of the most important assets, which even Narayan Murthy said himself. So, how were you introduced to human resource? Because it's one of your specialization. Jahan bhi jao, when I say about Hemal Shah,
the first thing that comes on everyone's mind is HR, कि ये बंदा HR में expert है. If you have any doubt related to it, corporate में HR में growth wise, in terms of leadership, everything में you have the answer, Hemal Shah. So Hemal Shah, how Hemal Shah was introduced to HR, to human resource, आपने कैसे उसे conquer किया, आपने उसको कैसे कह सकते हैं आपके लाइफ में वो कैसे आया, and how it changed your life? I want to know from there. All right, Apurva. So to answer to your question, very logically, practically, and something which is doable. So if you would have studied the greatest leaders ever in the history as well as right now, the one thing which they carry in common is managing human resources. The greatest of the companies are built through people. So there is never one person who can build up great empires, great companies, or great kingdoms. It's always about people, people, and people. And if you can manage your resources in an extremely great way, you can build an empire, you can build something which you ever wanted to, and it is like you can achieve the unachieved. And how do you do that? So again, it is the team. Now, when you talk about human resources, so I am a lot into reading, I am a lot into meditating, and I found out one thing, that my best is to help people to understand their best. So now if you would, it is said that if you would measure a fish by its ability to swim, it will always be a failure. That means that you have to keep the right resource at right place. So if you can help Ronaldo to play football, Sachin to play cricket, they would be the best of them. So then how do you do that? And that's what I have been polishing myself, helping people to know their best, keeping them at their best positions in terms of work. And that's where you can build up an empire. Wow. And I want to know a bit more in that. I want you to add something to that answer because it got me a bit curious. That is, what, how you got that sense of guiding others into you, because I'm definitely sure that there must be some story behind this, that you must have learned this through some incident, through something, maybe when you have first stepped into the corporate world. So I want to know about that a bit. Sure. So then, while reading a lot of books, I read around 2.5 hours a day daily today. Oh, wow. I read in Brahma Muhurat. I complete my meditation and I start reading by 5 a.m. I get up at 4. So while reading, I wanted to discover, there was a book I came across and it wanted me to answer that why am I here on this universe and what am I here to do. And after brainstorming, after self-introspecting for a lot of years, I came up with an answer that my existence is to help entrepreneurs to grow. That's what I am here for. That's very clear. That's my purpose of life, which gives me a kick. And someone asked me that why do I exist? If I had to answer that in one word, so that one word is to inspire. So I want to inspire everyone who is associated with me. It can be my vendors, it can be my team, it is my friends, family, colleagues, any one of them. So therefore, I am someone who focuses so much into human resource, which gives me a kick, which when I inspire people, when I grow them, I grow. Wow. The thing that I have noticed when I'm talking to right now we're talking, and from the research that I have done, one thing that I have noticed is you have this thing for entrepreneurship. With businesses, with entrepreneurs, you have, I guess, somewhere, if I'm not wrong, you may have a soft spot for them. If someone is an entrepreneur, it's it feels, from what you have said, it feels like it looks like to you, it looks like a moral duty to help them grow and prosper and thrive with their businesses. And so, and I want to know, if you, when you were introduced in entrepreneurship for the very first time, how did you thought ki, okay, when you were introduced to the concept of entrepreneurship, where you how did you learn about in the beginning stage, in the initial days, how did you learn about entrepreneurship? Okay, you got to know about it, you know the basics, but what you saw in entrepreneurs, in businesses, that okay, over here they can work and over here they can improvise, they can and I can help them do that, because
they don't have that thing like not exactly, they lack somewhere some of those things that you think that you are having, like at that time you thought, yeah, I am having this and I can help entrepreneurs in this way. So I want to know something about that, like how you recognize that okay, entrepreneurs and entrepreneurship is something that I have something for, and this is my specialization and I can give something to all the entrepreneurs that they can't get themselves. So what are some of those things? So at the very early stage of my life, talking to a lot of mentors, talking to a lot of gurus, I understood that there is always a tipping point. So once you achieve a tipping point, the final ultimate motive of a human soul is definitely to give back to the society. Now, what do you give back? You give back something which you have in abundance. So let's say you have heard people, they donate 1500 crores. They give a lot of money because they have money in abundance. Now, what did I have? So I had something which is known as skills, which was in abundance. So then I decided to give back to the society. Now, if I would have been ever in a job, I could have given back to only a limited people because I would have been surrounded with them. But to give back to a lot of people, so the goal is larger than life. Like helping 5 lakhs people is larger than life. How do you do that? You can only do it when you become an entrepreneur. And not only entrepreneur, someone who achieves a lot of things in every spheres of life. So that's where my journey started. That's where I decided that let me be someone who achieves a lot in a lot of spheres of life and then help lakhs and lakhs of people to achieve that. So therefore, my moral duty is, of course, giving back to the society, creating an ecosystem wherein I can help a lot of people to grow, to achieve more and more. And then the $1 million statement that a lot of people say that, we should change, but we should not change. It is not about change. It is about #evolve. So when people say that, yaar, change hona padega, mat ho. Every new stage of your life demands a new you. And that's where you evolve. So a lot of people come and tell me कि यार हेमंत हमको 5 करोड़ से 25 करोड़ जाना है, हमारी सैलरी लेट्स से कि 10 लाख CTC है, हमको 50 लाख कमाना है. But यार एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्स वुड नेवर गिव यू व्हाट यू वांट, इट वुड गिव यू व्हाट यू आर. And how do you become that are is only by evolving. So that's the journey. I want to help people to evolve and reach where they want to. इससे ना मेरे को एक काइंड ऑफ कह सकते हैं ऐसी लाइक इच्छा जग गई कि काश मैं आपको कॉलेज टाइम पे जान पाता, आई इन योर कॉलेज डेज, बिकॉज मैं ये तो मैं 100% कह सकता हूँ कि इन कॉलेज यू वर लाइक वन ऑफ दोज वेरी एम्बिशियस सोल्स जिनकी एनर्जी से एवरीवन वुड हैव बीन इंस्पायर्ड. लाइक I can sense that. I have seen a few in my college only and in some other colleges. I got the chance to witness some of them. But आपकी energy in college would have been so great. That entrepreneurship spirit and everything. I mean, I am kind of unlucky to miss that out. But I'm very sure that like there will be so many people in that, like from that early age only, who would have got inspired from you. I can sense. I'm like, it's something that I'm feeling about you, that ये चीज तो like, because I kind of feel a lot of energy from you coming and a lot of inspiration and positive energy since the beginning of the conversation कि whenever you are having this sense कि whatever I do, it should be helping someone. That sense I'm getting from you. And to all the listeners who are wondering कि हम लोग कुछ लिख रहे हैं, as I said, we were having one activity that we have said that we'll be doing during our conversation. That is, we'll be assessing each other. हम लोग एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे, but थोड़ा deeper level पे. We'll be talking to each other and we'll be also trying to note down that what we are getting to know about that person. Like if I say that, like for example, I have written that now that Himal sir is a very passionate and very deep soul. That is something that I feel about him. So I will be writing it down and we'll be writing down a few points. And in the last few minutes when we'll be wrapping up, we'll be discussing on those points. It will help us connect more better and more deeper. And I guess that's the essence of this podcast. That is to know our guests, Halchal, and to connect with them. So moving on, I want to know few words that describes you the best. Mm-hmm. But before I answer that, I would love to add up something for you as well as for the audience. You talked about the college. So being very open and direct,
The Indian education system is something which is the worst system I have ever seen. Open challenge to everyone who is into education system. Because यार ये लोग क्या करते हैं, हमको सिर्फ एक ही चीज सिखाते हैं, गुलाम बन जाओ. यार कॉलेज बोलती है कि यार डिग्री ले लो जॉब मिलेगी. अरे क्यों जॉब करनी है यार, डिग्री ले लो एंटरप्रेन्योरशिप बन पाओगे, वैसा कभी कोई नहीं बोलता. एंड दैट्स वेयर आई वांट टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड. यार कॉलेज क्या सिखाती है, गुलाम बनना, टाई पहनना, अच्छा सूट पहनना, 10 से 7 कॉर्पोरेट में काम करना और बॉस हाँ बोलना, बॉस सही है ये बोलना. दिस इज समथिंग विच इज SHIT. I mean, do you really take a degree for being someone who wants to be in the job, or do you really take a degree for evolving yourself and being a great entrepreneur? Now the choice is yours, but everything is an adopted belief system. घर वाले बोलते हैं डिग्री ले ले, अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छी बीवी मिलेगी, अच्छी शादी कर पाएगा, अच्छे से घर चला पाएगा. अरे क्यों करना है यार, मेक द वर्स्ट आउट ऑफ यू मैन, इट्स ओके, कम कमा लिया क्या फर्क पड़ जाएगा. द फाइनल एम इज ओके, सो डेट ऑफ डेथ माइनस डेट ऑफ बर्थ इज व्हाट यू हैव. और उसमें कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया याद रखे. यार 10 से 7 काम करना, 60 साल तक एक ही लाइफ जीना, एंड देन यू कॉल इट अ लाइफ. नो इट इज नॉट. So the first message I want to pass is, guys, if you have that courage, if you are watching this podcast and you want to take a decision कि यार job करना चाहिए कि business, no overthinking, guys, business कर लो. Fail, but fail exponentially, and that's where you learn, you grow, you again learn, and then you earn. So this is how the system should work. And yeah, to answering to your statement that if I have to describe myself in few words, I would say that I'm never, and I never wanted to be a motivational coach, nor I am, because motivation is bakwas, transformation is khas. So one word which describes me is transformation. Wow. I can transform people for sure from the core. One more word which can describe me is inspiration. If you want to know other few words, it is like clarity, compassionate, passion, growth, creating an empire. These are some words which can describe me at the best. And definitely they're like, I mean, they are your, what you can say, your voice is only saying all those qualities, like it's driving those qualities. And I'm sure हमारे listeners भी sense कर पा रहे हैं ये चीज़ कि like how like I have seen you that आप में एक तो वो है जज्बा कि कुछ करना है, despite if we fail we'll get to learn something, but हमें वो करना है एंड हमें सीखना है, और वो सीखने की चाह हमें होनी चाहिए, और अगर चाह तो रहा है. ये एक चीज़ मैंने, एक और चीज़ आज मैंने सीखी. अब when you are learning something, as you have talked about, we tend to fail low. We tend to fail in the initial stage. Like I remember myself कि एक ऐसा पॉइंट था जब मैं हर चीज़ में फेल हो रहा था, कि कुछ चल ही नहीं रहा था, कुछ आइडियाज़ ही काम नहीं कर रहे थे. And I'm sure like आपने इतनी चीज़ें की हैं, you have worked with so many businesses, you must have come across some sort of failures जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा. So ऐसी कोई सीख है जो आपको like हमेशा याद रहेगी, and it's like something जो आप कभी like भूल ही नहीं पाओगे. It's one of those failures which you don't want to happen to anyone ever again, and that learning you want to give to everyone, जो आप इस podcast के थ्रू आज अगर देना चाहो. तो ऐसी कोई इंसिडेंट है जो आप बता सकते हो हमारे व्यूअर्स को? Sure. So the first सीख ever is कि यार failure तो exist ही नहीं करता. So now when you quit, you fail. But when you keep on doing it, you only learn. So it is a simple journey. I've read a book and there is a diagram which says a loop. So it is like an infinity circle. So it starts from a point wherein you do something. The second point is you 100% fail and fail. And then you learn, you succeed. Now, once you succeed, you of course take up a bigger goal. Now, when you take up a bigger goal, again, the first point is you do it and then you fail, because that's how the system works. So failure is not an opposite of success, it is a part of success. Now, you had a bigger goal, you failed. That means you learned, you developed a system, you again grew, you achieved it. Now, time for another bigger goal. So those people who say that there is a failure, no, it is not. If you quit, you fail. But if you be on the pitch, एक बॉल तो ऐसा आएगा ही जहाँ पे तुम 6 मार लोगे. But pitch से हट गए तो बोल्ड हो गए, definitely fail हो गए. And with this, you also ask, and a lot of people ask me कि यार हिमल, how can you be always so energetic and so happy? So यार ये तो बहुत simple है, क्योंकि human birth और human soul by default
हैप्पीनेस के लिए ही बर्थ लिया है उसने. सो हैप्पीनेस तो ऐसा है ही नहीं कि तुमको फाइंड करना है. लाइक यू गो टू अ किड, यू स्माइल, ही स्माइल्स. सो दैट्स व्हाट द डिफॉल्ट मोड इज. पर हमने क्या किया है, बहुत सारी चीज़ों का लोड लिया है, ओवर थिंकिंग करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, फालतू की इन्फॉर्मेशन भरते हैं, और हम वो हैप्पीनेस के लेयर पे सैडनेस चढ़ा देते हैं. यार वो लेयर हटा दोगे ना तो हैप्पीनेस तो बाय डिफॉल्ट है, उसके लिए थोड़ी ना एफर्ट भी डालना पड़ रहा है, वो तो खुदा ने ऐसा बनाया है. सो देन यस, एनर्जी एंड हैप्पीनेस इज बाय डिफॉल्ट. जस्ट डिलीट द लेयर्स एंड बिलीफ सिस्टम्स विच यू हैव एडॉप्टेड एंड यू विल बी हैप्पी एंड एनर्जेटिक एवर. I guess this is something that I'll request to my wowsome listeners to listen to again, because a very simple yet very strong statement it is. It's like we have the choice to be happy and it's on us only. हमें कोशिश करनी है, और अगर हम सही जगह पे कोशिश करें, सही राह पे कोशिश करें, सही दिशा में कोशिश कर रहे हैं, then we'll always be happy, we'll always be contented, and yes, we will fail, but as you can see, the man who has learned so much, the man who has made so many people grow, he's himself saying this, and he's the testament of that fact कि अगर चाह है तो राह है. So with this, I'm sure every one of us has seen a kid. So वो एक kid जब crawl करना सीखता है और फिर चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है? अनगिनत बार. बट क्या वो क्विट कर देता है कि अरे रे मैं तो गिर गया यार, अब तो मैं जिंदगी में चल नहीं पाऊंगा? So that's it. It's a learning phase. वो गिरा उठा. That's where he learns and that's where he succeeds. पर हम लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं मैच्योर हो जाओ. Again, stupidity. यार बच्चे रहो, क्योंकि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी है. बच्चों को पता ही नहीं है कि फेलियर जैसे कुछ चीज़ है. उसको एक ही चीज़ पता है, मेरे में सेल्फ बिलीफ है, आज मैं क्रॉल कर रहा हूँ, कल मैं चलूँगा, गिरूँगा, चलना सीख जाऊँगा. बट नाउ व्हेन यू ब्रिंग इन ओवर थिंकिंग, व्हेन यू go for authorizations from people कि यार मैं अपने पापा को पूछूं, मैं अपने दोस्त को पूछूं, तो बाबा वो उसका व्यू पॉइंट था, तुम्हारा नहीं. और उसने कह दिया ऐसा तो नहीं हो सकता, हमने मान लिया ऐसा नहीं हो सकता, एंड दैट्स वेयर वी क्विट. डोंट डू दैट यार. तुमको जो करना है करो, सक्सीड हो जाओगे. Now I have started the conversation with keeping two things in my mind, that is optimism and connection. The questions that I have asked you initially, मैं इन्हीं key pointers को target करना चाहता था, because today we are talking about human resource and today we are going to know you professionally. HR में I have observed that we have observed in HR that you need to be very patient, you need to have that optimistic approach, and you need to build connections with your team members, with all the people in the company. And I guess उन्हीं चीज़ को दिमाग में रखते हुए I have asked you these questions, and now I want to get into more of a technical side. कि how HR is perceived, how can one become a very good HR, and so on and so forth. So starting off with that point, by the way, also sir, it's जैसे we are writing this down, it's again a two-way communication. If you have something that you think that you should, you think you need to ask, then please do ask, because I want कि दोनों तरफ से as much as we communicate more, the more we communicate, the more we will be able to get from this conversation. So yes, if you do have any questions, please do ask. I'll be happy to sure. answer. So yes, so sir, starting off, HR is having this reputation in market that all they do is yesterday only when we went for a company visit, the department head who were assisting us, she said that HR is always perceived as those who prepare for rangoli making competition. उसी नजरिए से देखा जाता है HR rangoli making competition. That's it. So why do you think it's the image of HR managers is like that in the industry? क्यों ऐसा employees सोचते हैं? And what would be why do you think this happens, and how can we mitigate this thing? ये thinking को हम हटा कैसे सकते हैं आपके नजरिए से देखें तो? ये थॉट प्रोसेस बहुत सही है, क्योंकि आजकल का बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि मैंने HR का डिग्री ले लिया, तो मेरे को पीछे AC, आगे PC और मेरा कैबिन, और मेरे को सब सर बोलने चाहिए. अब वो भाई को कुछ आता नहीं है, और बुर्ज खलीफा 6x6 के कमरे में बैठ के नहीं बन सकता, उसको साइट पे जाना पड़ेगा. अब ये भाई ने 4 चीज़ें पढ़ लिया, उसको लगा कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट करने से रिटेंशन बढ़ जाएगा, रंगोली कंपटीशन करा दूँ. ऐसा नहीं होता. सो पहला तो जेन जी का जो प्रॉब्लम है ना, पीछे AC आगे PC मेरा कैबिन, वैसा नहीं होता है. साइट पे जाना पड़ेगा, 5 साल काम करना पड़ेगा. सो ये परसेप्शन तोड़ना है. अब इसका सॉल्यूशन यही है कि यार HR में एटीट्यूड नहीं चलेगा.
तुम एचआर मैनेजर हो मतलब तुम पीपल्स मैनेजर हो, तुम लीडर हो, तुम बॉस नहीं हो। और एचआर मैनेजर को ऐसा लगता है मैं बॉस हूँ, मैं जो बोलूँ वो सही, कंपनी मेरे हिसाब से चलना चाहिए। नहीं बाबा, सिंपल है। फर्स्ट रूल, बी जेन्युइन। सेकेंड इज बी डाउन टू अर्थ। मतलब यार तुमको उस हद तक जाना पड़ेगा कि तुम्हारे प्यून और वॉचमैन के टिफिन में से तुम जब खाना खा पाए तब जाके तुम एक रियल एचआर मैनेजर बन पाओगे कि यार अगर तुम ऑफिस में नहीं हो तो उसको भी तुम्हारी एब्सेंस फील होनी चाहिए। पीपल वुड नेवर रिस्पेक्ट एटीट्यूड, पीपल वुड रिस्पेक्ट पीपल हु वुड रिस्पेक्ट पीपल। सो यहाँ पे लोग ये भूल जाते हैं कि यार हम इंसान के साथ काम कर रहे हैं, हम रोबोट के साथ काम नहीं कर रहे। सो रिस्पेक्ट पीपल, बी जेन्युइन, बी डाउन टू अर्थ, एक ह्यूमन कनेक्ट क्रिएट करो तो आप बहुत अच्छे सक्सेसफुल एचआर बन जाओगे जिसमें पढ़ाई की जरूरत भी नहीं है। इट्स बीइंग जेन्युइन, दैट्स इट। You mentioned about boss and leader कि an HR is the leader not a boss. If we have to, आप उसके बीच में differentiate कर सकते हैं like how who is the boss and who is the Yeah, leader? amazing difference. So when you talk about you and when I talk about I, it's boss. When we talk about we, it's leader. Okay. So people have to be leader. They have to say कि let's do it. That's leadership. Go, you do it. That's being a boss. तेरे को नहीं आता, that's a boss. अरे भाई हम साथ में कर लेंगे, that's a leader. So this is the difference. And do you think like apart from an HR manager, a CEO or someone who is running a company, should he be having that boss वाला personality or leader वाला personality? 100% लीडर वाला पर्सनालिटी। सो आज आप बताइए कि रतन टाटा जी आपके साथ बैठेंगे तो क्या वो 100 बार ऐसा कहेंगे कि मैं रतन टाटा हूं? नहीं कहेंगे। क्या वो ब्रांड पहन के आएंगे? नहीं, क्योंकि वो रतन टाटा है। और रतन टाटा इसलिए है क्योंकि उसके अंदर सब्सटेंस है। तो एक लीडर के अंदर सब्सटेंस होगा ना तो रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आएगा। सो थॉटफुलनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पर आज जब अगर मेरे पास कुछ भी नहीं होगा तो मैं ब्रांड पहन के आऊंगा तो मैं 100 लोगों को कोशिश करूंगा दिखाने की कि बॉस मैं हूं, मुझे रिस्पेक्ट दो, जो कभी होना नहीं है। सो गुजराती में कहते हैं ना कि खाली एम्प्टी वेसल्स मेक मोर साउंड, तो वैसा है। एम्प्टी वेसल हो गए तो ज़्यादा साउंड करना पड़ेगा। अरे यार भरे हुए हो तो ज़रूरत ही नहीं है। आपका ऑरा और आपका थॉटफुलनेस आपके लिए बोलेगा। सो एचआर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है वो एचआर है। अगर उसमें वो दम है तो यार पीपल रिस्पेक्ट से काम करेंगे। सो बॉस ऐसा होता है कि जो डरा के काम करता है कि ये काम कर दे वरना निकाल दूंगा। और रिस्पेक्ट ये चीज़ होती है कि वो बोलता है कि दोस्त अपने लिए करना है, ग्रोथ के लिए करना है, तेरा भी फायदा है। तो डर थोड़े दिन तक काम करवा पाएगा, रिस्पेक्ट लाइफ टाइम काम करवा पाएगा। एक बहुत प्यारी स्टोरी शेयर करता हूँ। स्टोरी तो नहीं, एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। मैं आपको, ऑडियंस को और आपको क्विकली पूछूंगा, आपको है ना टाइम नहीं लगाना। फर्स्ट थिंग फर्स्ट ऑफ मिली सेकेंड्स में आए वो बताना। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन हु लैंडेड ऑन द मून? नील आर्मस्ट्रॉन्ग. Who was the first person who climbed Himalaya? That I don't know. Took some seconds? Yes. Okay. Who do you remember as a friend कि यार वो रात को 2 बजे भी आपके साथ बैठेगा, दारू पिएगा, आपको समझाएगा और आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा? सामने बैठे दोनों. So you remember it in milliseconds? Name a person who would always support you in your goods and bads. My parents. Okay, so not the name literally, but it take you less than milliseconds. Someone who can stand by you even if you are wrong, to guide you, to support you morally. My parents. Took milliseconds. So now that's the leader. That's where he has earned respect. You don't really need to take 10 seconds to recall the name. So if you could create influence, a positive influence in people's life, you are respected and you are a leader. And a leader always wins, not the boss. Wow. It's very deep, I guess. You know, I really love these kind of exercises because recently in a few episodes it happened ki the guests, instead of just saying it out, they made me experience that. And I guess that experience is what teaches us a lot. That experience is what enables us to understand and to actually get to the gist of it. अगर हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे तो ही हम उसे बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे और लाइफ में अप्लाई भी कर पाएंगे. सो एंड आई होप दैट आवर ऑडियंस आल्सो हैव tried this exercise and they have got
to understand ki हाँ, how a leader is. So yes, but also sir, when we are talking about leadership, it is seen that a lot of companies don't prefer to work with young leaders, or I can say Gen Z. Like they are, like recently only I read this article where it said that companies want to hire people who are millennials. They want to hire millennials as HR managers, as in the top management positions, and not Gen Z, because they are having this attitude that I will not work on anyone's norms. I'll be working on my own, in my own ways. I'll be having my own set of rules and everything. So एक वो attitude है, but there is like, it's just like the ones who are very good also, who are actually good HR managers, they are also getting filtered out because of this notion and perception. So how do you think that we can work in order to solve this problem? तो ये वाला जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको पॉडकास्ट पे रखना, कट मत करना। एकदम एकदम। तो कैसे पहले ऐसा बोला जाता था कि दो तरह के लोग हैं, एक होता है कांट डू, एक होता है वोंट डू। सो कांट डू मतलब क्या कि करना है पर नहीं कर पा रहा, तो उसको हम ट्रेन कर सकते हैं, वो ओपन माइंडेड है, वो ग्रो करेगा लाइफ में। एक होता है वोंट डू, मतलब आता है पर नहीं करूँगा, एटीट्यूड प्रॉब्लम है। अभी ये तीसरा वर्ड इन्वेंट हुआ है, कांट डू वोंट डू गांडू। तो ये लोग तो एक्चुअल में ये लोग गांडू है कि वो कंपनी का इंटरव्यू लेते हैं, वो कंपनी को बोलते हैं कि यार मैं तो मंडे टू फ्राइडे काम करूँगा। अरे भाई तो तू एंटरप्रेन्योर बन जा, क्योंकि कंपनी बोल रही है उसको कि मेरे वहाँ 100 का स्टाफ है, हमारा मंडे टू सैटरडे वर्किंग है, हम 10 से 7 काम करते हैं, ठीक है। तो उसको ऐसा बोलना चाहिए कि ठीक है सर, आई रिस्पेक्ट यू बट मैं फिट नहीं हो रहा, थैंक यू। अब वो सिखा रहा है कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है सर, मैं तो मंडे टू फ्राइडे आऊँगा, 10 से 5 आऊँगा, और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि कंपनी उसके लिए पूरा उसका एम्प्लॉय रूल बुक चेंज कर ले। सर मैं तो टी शर्ट पहन के आऊँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा, मेरा जेडी मैं खुद बनाऊँगा। अब वो हो सकता है, तो पर कैसा है कि वो उस ट्रेंड सेटर जब बनेगा तब ऐसा होगा, और वो ट्रेंड सेटर तब बन पाएगा जब वो इंडस्ट्री में उतना नॉलेज लेके बैठा हो। अब वो ट्रेंड सेट करने की हालत में नहीं है, वो ऑलरेडी फॉलोअर है, उसको कुछ आता नहीं है, उसको 4 क्वेश्चन पूछो तो उसको एक का भी आंसर नहीं आता, और वो एक्सपेक्ट करता है कि कंपनी उसके हिसाब से चले, तो वो थर्ड कैटेगरी में आ गया। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मुझे मजा आता है पूछने में कि सैलरी क्या लोगे, तो बोलता है कि 1 लाख रुपया महीना। कोई प्रॉब्लम नहीं, दिया, पर उसका ब्रेकअप क्या? तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ आज तक कि मेरे को ऐसा ब्रेकअप मिले कि सर मैं आपकी कंपनी की वैल्यूज़ में और आपकी कंपनी के विजन में कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा, मेरी स्किल्स आपकी कंपनी को ये वैल्यू एडिशन देखी जिसके लिए मैं 1 लाख मांग रहा हूँ। पर मेरे को 3 साल से वो आंसर नहीं मिला। मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग आंसर मिलता है कि सर मेरी गाड़ी का इंस्टॉलमेंट है 17,000, मेरे घर का इंस्टॉलमेंट है ये, मैंने आईफोन लिया है जिसका 12,000 इंस्टॉलमेंट, तो सब मिला के मेरा 1 लाख है, तो वो मेरी नीड है। अरे भाई तो मैं तेरे को तेरे इंस्टॉलमेंट भरने के लिए नहीं ले रहा, मैं तेरी स्किल्स के लिए तेरे को हायर कर रहा हूँ जो तेरे में है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, वो चौकड़ी हो जाता है। एंड ऐसा सब करेंगे ना तो क्या लाइफ में आगे आएंगे। काम करना नहीं, पैसा भर के चाहिए, किस लिए? वो सब्सटेंस ही मिसिंग है। तो इसलिए जेनजी के साथ लोग काम करना प्रेफर नहीं करते। आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई लाइक आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि किसी जेनजी लाइक यू हैव वर्कड विद अ जेनजी एंड द एक्सपीरियंस वाज नॉट वेरी गुड? So I would not say good or bad. Experience is an experience. It is never good. It is never bad. But then yes, with these people, instead of me being worried about good or bad, I'm more worried about. I feel pity on them because their salary is 30,000. They use an iPhone which is 1,60,000. They do not know what they have to do tomorrow. They change their jobs in 3 months, and they say कि मेरे घर से दूर था। तो अगेन तू जब इंटरव्यू देने गया तब तेरे को उस दिन पता नहीं था कि तेरे घर से ऑफिस कितना दूर है, और तेरे को 90 दिन बाद रियलाइज हुआ कि यार ऑफिस घर से दूर है। तो इतने स्टूपिड और सिली लॉजिक है इनके कि यार ये लोग रीजंस पे फोकस करते हैं, रिजल्ट पे नहीं। उनके लिए उनके दादा के चाचा के भतीजे के भाई की शादी प्रायोरिटी है और जॉब प्रायोरिटी है ही नहीं। तो ऐसा करेंगे तो लाइफ में वो 3 साल बाद कहीं नहीं पहुंचेंगे, और मे बी आई डोंट नो, मतलब वो डिप्रेसिव मोड में जाएंगे, वो एंग्जाइटी मोड में जाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, या फिर शायद वो मतलब ना करने के स्टेप्स ले लेंगे, जैसे कि वो सुसाइड कर लेंगे कि मैं डिप्रेस हो गया, मैं रिजेक्ट हो गया, क्योंकि उसने काम ऐसे किए है। तो आई एम पिटिंग दैम कि यार क्या करेंगे इन सब का। आई डोंट नो एज ऑफ नाउ व्हाट टू डू।
you know, like adding to that only, आपने जैसे कहा like there is such a like there is a variety of people in Gen Z also who are having different sorts of talent, attitudes, and कुछ attitudes चलते हैं, कुछ attitudes बिल्कुल ही नहीं चलते, especially the one that you mentioned. And also, but there is a thing ki like a lot of people, like recently only this news came that one of the CAs from Ernst and Young, she died. I guess she died because of overworking, or she committed suicide. I'm not sure of the specifics, but because of overworking, she lost her life. So आज के डेट में it's like I feel somewhere that overworking is also killing the productivity somewhere in the Gen Z, and there is this fear कि हाँ अगर हम एक corporate life में जाएंगे then हमें overwork बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा. Some are just bounded by कि हाँ हम लोग को करना है, and some are like कि they think that like some are very much just forced कि इसके अलावा कोई option नहीं है, और कुछ business से डरते हैं. They have really great ideas and they are scared. नहीं, there is no fear, there is greed. फियर ये है कि मैं रह गया इस रेस के अंदर, मेरा बाजू वाला आईफोन यूज कर रहा है, मर्सिडीज घुमा रहा है, तो मैं नहीं घुमा रहा, और मैं अपने आप को फेलियर बोलता हूँ. सो वो ग्रीड है कि उसने किया मेरे को करने का, और उसकी वजह से वो प्रेशर लेता है, स्ट्रेस लेता है. उसकी सैलरी 5 लाख है तो मेरी क्यों नहीं? अरे नहीं होगी भाई, तेरी कॉलेज कौन सी है, तेरा सर्कमस्टेंसेस क्या है, तेरा स्किल्स क्या है, तेरा एक्सपीरियंस क्या है, वो भी तो देख. नाउ जब कंपैरिजन होने लगता है तब डिप्रेशन आ रहा है. जब ग्रीड होने लगती है तब ओवरवर्किंग आ रहा है कि यार मेरे को तो कर ही देना है, मेरे को तो 2 साल में CEO बनना है. नहीं होगा यार, एंड दैट्स वेयर द फेलियर इज. सो अगेन टू द स्कूल्स एंड कॉलेजेस आई वुड इंसिस्ट और आई वुड फर्मली बिलीव कि यार लोगों को फेलियर्स एक्सेप्ट करना और रिजेक्शन को हैंडल करना सिखाओ. लाइफ में स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट कि आज हमारी टीम हार गई, ओके, हम प्रैक्टिस करके मेडल लेने की कोशिश करेंगे, ना कि हम रोएंगे कि यार हम क्यों हार गए. एंड देन दिस प्रॉब्लम इज कि यार मैं रह गया, मैं हार गया, मेरी सैलरी कम है, मैं BMW नहीं घुमा पा रहा, और फाइनली मैं सुसाइड कर रहा हूँ. तो बाबा तू ग्रोथ कर, तू अपने आप को इवॉल्व कर. तू आज नहीं कर रहा ना, तेरे पास और 40 साल है, उसमें कर लेगा. बट नहीं, सब कुछ रातों रात चाहिए, वैसा नहीं होगा. और ओवरवर्किंग मतलब क्या? वर्किंग मोर देन योर कैपेसिटी. तो ये तो कैसे हो सकता है? तुमको कैपेसिटी बढ़ानी है कि काम कम करना है? काम कम करना. नहीं, कैपेसिटी बढ़ाना है. कैपेसिटी बढ़ाना. तो उस पर फोकस नहीं कर रहा, मेरी कैपेसिटी इतनी है, मैं ओवरवर्क कर रहा हूं. अरे नहीं यार, तुमको वर्क तो ज्यादा करना ही पड़ेगा अगर लाइफ में ग्रो करना हो. तुम्हारा कैपेसिटी बढ़ाओ. सो दिस मीन्स कि ये बॉटल में अगर 200 ml पानी आ रहा है और ये बॉटल कंप्लेन कर रही है कि यार ओवरफ्लो हो रहा है, सो दैट्स अ रॉन्ग कंप्लेन. द पॉइंट इज कि बॉटल का साइज बढ़ाओ कि 2 लीटर आए, फिर 10 लीटर आए, फिर 1000 लीटर आए. उस पर फोकस करना नहीं. मुझे क्राई बेबी बनना है, रोना है कि यार मेरे को तो इतना ही आता है, तुमने मुझे ज़्यादा काम दिया. तो फिर तुम ग्रोथ कब करोगे लाइफ में? आज शाहरुख खान जी भी अगर 18 घंटे काम करते हैं, अमिताभ बच्चन जी भी इस एज में मूवीज़ बनाते हैं, तो क्या वो ओवर वर्किंग कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने अपना कैपेसिटी इतना बनाया कि इस एज में भी वो इतना सारा काम कर पाए. सो सी दैट एस्पेक्ट ऑफ इवोल्यूशन रादर देन सीइंग द एस्पेक्ट ऑफ रीजंस एंड बीइंग सप्रेस्ड. Also, so like regarding to this, I have one question. That is, recently only the director of L&T said that it is a, what we can say, it is a bane, it is what we can say, it's a big problem that I'm facing, that I can't have my employees working on Sundays. Like I'm in such a bad state that I'm not having my employees to work on Sunday, because I work on Sunday, and they should not be giving the time to personal self improvement and family and friends, but they should be working on Sundays. And also Nayan Murthy said that we should be working 70 hours a week and everything. So do you think that like in this constant state of competition and competitiveness amongst founders, companies, employees, is it right that instead of like आपने जैसे कहा कि हमें अपने आप को improve करना चाहिए, कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, but sometimes it also happens कि if we like ज़्यादा कैपेसिटी हम बढ़ा देंगे, then it would be like even if we increase the size of, we keep increasing, at one point the bottle will burst. So उस point तक हम ना जाए, उसके लिए like I guess it's something that HR's responsibility is कि हाँ ऐसे टाइम पे हमें step in करना पड़ेगा, and हमें employees को ये बताना पड़ेगा कि it is okay to not be okay, it is okay to give yourself time.
सो ऐसे टाइम पे आपको क्या लगता है एचआर कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, एक एचआर मैनेजर कैसे अडॉप्ट कर सकता है, एक नॉर्मल कॉर्पोरेट गाय कैसे अडॉप्ट कर सकता है? ओके, सो पहला तो है ना, ये सब बहुत फालतू बातें और डिफेंसिव बातें हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आप मुझे बताओ, मैं आपको 3 चीज़ पूछना चाहता हूँ कि यार आप सुबह ऑफिस गए, आपने 7 घंटे काम किया, घर आए, बीवी के साथ बैठे खाना खाया, खेले, सुबह उठे, डू यू वांट टू लिव दिस लाइफ एवर? नहीं। तो पहला तो ये विथ ऑल रिस्पेक्ट, नहीं लेट मी टेल विथ ऑल डिसरिस्पेक्ट, ये सेंटेंस ही जिसने इन्वेंट किया ना, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं सच में उससे चाय पीना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस क्या होता है। दैट्स द मोस्ट स्टूपिड कॉन्सेप्ट आई हैव एवर कम अक्रॉस, एंड आई थिंक दिस इज टू बी हाईलाइटेड इन दिस पॉडकास्ट। यार सबसे पहले इतना बड़ा इम्बैलेंस तो करो कि बैलेंस करने की मजा आए। तुम 25,000 कमा रहे हो, बीवी के साथ एक सस्ते से ढाबे पे खाना खा रहे हो, फालतू टी शर्ट पहन रहे हो और बोल रहे हो कि मैं लाइफ बैलेंस कर रहा हूँ। अगर ये कर रहे हो तो मत करो, इम्बैलेंस करो कि हेलीकॉप्टर ले आओ, याच ले आओ, आइलैंड खरीदो, BMW खरीदो और फिर एक बुक लिखो कि अब मैं बैलेंस करने की कैपेसिटी में हूं और अब मैं बैलेंस करूंगा। बाकी बैलेंस नहीं होगा। डू यू थिंक कि एक ढाबे पे बैठना, 2 रुपए की चाय पीना, सस्ती चप्पल पहनना और खुश रहना इज अ बैलेंस्ड लाइफ? नहीं है। और अगर कोई बोलता है तो पहले उसको बोल कि तू इतनी कैपेसिटी बढ़ा कि तू कमा के तो देख, तू नहीं कर पा रहा इसलिए तू डिफेंसिव स्टेटमेंट दे रहा है कि यार मेरी लाइफ तो बैलेंस्ड होनी चाहिए। कोई नहीं। तेरे बच्चे स्कूटर पे घूमेंगे वर्सेस BMW में घूमेंगे, किस में खुश रहेंगे बता? BMW। तेरे बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे वर्सेस म्युनिसिपैलिटी स्कूल में पढ़ेंगे, किस में खुश रहेंगे? अच्छे से अच्छे स्कूल। तो तेरे घर वाले खुद बोल रहे हैं कि भाई तू इम्बैलेंस कर, तू नहीं कर पा रहा इसलिए तू डिफेंसिव स्टेटमेंट दे रहा है कि बैलेंस करना चाहिए। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट निकालो, बैलेंस जैसा कुछ नहीं होता, इम्बैलेंस करना ही पड़ेगा। इम्बैलेंस करोगे तो ही टॉप पे पहुंचोगे, वरना नहीं पहुंचोगे। दूसरा ये बोलना चाहता हूं कि आज आप मान लो 1 लाख रुपए कमा रहे हो, एंटरप्रेन्योर हो या जॉब कर रहे हो, तो तुमको 1 लाख का 2 लाख तो चाहिए ना अगले साल, ठीक है, वो फॉर श्योर है। तो तुमने वो 1 लाख का 2 लाख कर दिया। अब तुम्हारी स्किल इतनी थी 1 लाख, अब 2 लाख चाहिए, तुमने स्किल बढ़ाया? नहीं बढ़ाया। तो स्किल कब बढ़ेगा? जब तुम इम्बैलेंस करोगे, जब तुम एक्स्ट्रा आवर्स खुद के इवोल्यूशन के लिए डालोगे। अब वो तुमको करना नहीं है, तुमको काम करना है तो 8 घंटा, तुम्हारी स्किल तो ये, पर हर महीने 30% इंक्रीमेंट चाहिए, हर साल 30% इंक्रीमेंट चाहिए। तो लॉजिक तो बिठाओ, मुझे समझ नहीं आता कैसे होगा। चाहिए इज वॉट यू डिजायर, बट डू यू डिजर्व? मुझे भी कैटरीना कैफ से शादी करनी थी, बट डू आई डिजर्व दैट? नो, आई मे नॉट, आई मे जस्ट डिजर्व माई वाइफ। सो डिजर्व और डिजायर में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस तभी पूरा होगा जब तुम बहुत बड़ा इम्बैलेंस करोगे। मत सो, मत खाओ, जागो 1 साल तक, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होएगा, ग्रोथ ही होएगा। सो ये कॉन्सेप्ट जिसने भी बनाया है वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर था, क्योंकि उसने हर एक जन के जहन में ये डाल दिया है, जो आई थिंक ये पॉडकास्ट से निकल जाना चाहिए कि नहीं होता ऐसा। मतलब तुम 60 साल तक एक लाइफ जीते हो और तुम बोलते हो कि यार मेरी लाइफ जोरदार है। तुम क्या एक लाइफ, एक रूटीन 60 साल तक जीने के लिए आए हो? सो बॉस, दैट्स नॉट लाइफ, दैट्स प्योरली गुलामी। एंड देन नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो देखा था, आई एम नॉट बीइंग पॉलिटिकल बायस्ड, बट देन यस, इंस्पिरेशनल वीडियो था। आप मुझे बताओ और ऑडियंस कैन टेल मी कि यार 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को सुबह सेम स्कूल में जाना है दोनों को, और बहुत सारा होमवर्क दिया है, दोनों सेम क्लास में सेम बेंच पे बैठने वाले। एक बच्चा बोलता है यार मेरे को तो बैलेंस लाइफ चाहिए, मैं स्कूल से आया, खाना खाया, टीवी देखा, नेटफ्लिक्स देखा, गेम खेला, सो गया, डन। एक बच्चा बोलता है यार मैं पूरी रात जाके होमवर्क करूंगा। इम्बैलेंस लाइफ, ठीक है। अब सुबह टीचर ने उसको क्वेश्चन पूछा कि यार तूने होमवर्क किया है कि नहीं? कौन सा बच्चा ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा बताओ? द वन जो पूरी रात जागा है। तो बाबा जिसने बैलेंस किया वो तो वैसे भी खुश नहीं है, वो तो कॉन्फिडेंटली हाथ ही नहीं उठा पा रहा कि मैंने काम किया है, तो क्या बैलेंस लाइफ की बात कर रहे हो? सो देयरफॉर द कंक्लूजन इज, जितना ज्यादा काम करोगे ना उतना स्ट्रेस कम होगा, जितना कम काम करोगे उतना स्ट्रेस ज्यादा होगा। पर लोग ये बोलते हैं कि कम काम करने से कम स्ट्रेस होता है। नहीं, ज्यादा काम करोगे स्ट्रेस कम होगा, ज्यादा कमाओगे स्ट्रेस कम होगा, खुशी बढ़ेगी। कम कमाओगे खुशी कम रहेगी, स्ट्रेस ज्यादा होगा। दैट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। आप अपने दिल से पूछो, खुद को आंसर करो, दैट्स द फैक्ट, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। I mean, that's how the balance is, and you create an imbalance. So now HR का रोल वहां पे आता है जहां पे वो
व्हाट इज़ राइट पे फोकस करे, हु इज़ राइट पे नहीं। और जितने भी लोग ऐसा मानते हैं कि यार बैलेंस लाइफ होनी चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, प्रोफेशनली काम होना चाहिए, नहीं होएगा भाई। प्रोफेशनली तुम रॉबोट्स के साथ काम कर रहे हो कि ह्यूमंस के साथ? ह्यूमंस तो इमोशनल होते हैं, तो इमोशनली प्रोफेशनली काम कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। सो एचआर का काम यही है कि ह्यूमंस को कनेक्ट करे, इमोशनल वैल्यू दे, ईक्यू बढ़ाए, आईक्यू बढ़ाए, इम्बैलेंस की बात करके लोगों को इतना अच्छे लेवल पे लेके जाए कि वो उस लेवल पे पहुंचने के बाद बैलेंस कर पाने के लिए सक्षम हो जाए। There is like, I'll be honest, is when you were talking about this, मैं थोड़ा ज़्यादा ही मतलब इस चीज़ में like हो गया था कि like because this is something जो बहुत ही unconventional है, आप रोज नहीं So exactly, अब मैं आप मेरे को, आप खुद सोचो कि आप दिन का एक पॉडकास्ट करोगे तो आप एक साल का कितना पॉडकास्ट करोगे? 365। अब 365 में से भारत में 65 तो छुट्टियां है, 52 संडेज है, 52 सैटरडेज है, तो बचा क्या? 100। नाउ डू यू थिंक 100 पॉडकास्ट करके आपका लाइफ का जो गोल है आप अचीव कर पाओगे? नहीं। तो बाबा आपको इररिजनेबल होना पड़ेगा, मतलब कंप्लीटली उस साइड ऑफ द काउंटर की जहां पे तुम इररिजनेबल हो, तुम पागल हो, मतलब कि पागल होगी इतिहास रचते हैं, समझदार तो सिर्फ उसे पढ़ते हैं। तो पागल होने के लिए इम्बैलेंस करोगे तो $multi-million या $multi-million की कंपनी बना पाओगे। और बैलेंस करके कैसे बनाओगे? मुझे बताओ, 100 पॉडकास्ट करके क्या आप कभी भी $multi-million की कंपनी बना पाओगे? तो ये तो स्ट्रेट मैसेज है कि यार पागल हो जाओ, इम्बैलेंस करो, बैलेंस की बातें छोड़ दो, कंप्लीट स्टुपिडिटी। Now since we're talking about this, एक मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि लोगों में ना एक बहुत कंफ्यूजन रहता है, लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट अपस्किलिंग, काफी लोग का ये परसेप्शन है कि कॉर्पोरेट में बस काम करते रहेंगे एक ही तरह से, लाइक खुद को स्किल नहीं करेंगे, बस अपना जो काम हमें दे रहा है हमारा मैनेजर वो कंप्लीट करेंगे एंड उससे ही हमारे स्किल ग्रोथ होता रहेगा विद एवरी न्यू प्रोजेक्ट, विद एवरी न्यू क्लाइंट, ऐसा ही होगा। बट आई बेग टू डिफर, आई से कि हम लोग को खुद से भी वर्क करना होगा। लाइक अगर लेट्स से इफ आई एम इनटू एचआर, मैं साइड बाय साइड कुछ नए स्किल्स भी लर्न करने की कोशिश करूंगा। देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज, मैं माइट भी कुछ तो ऐसे भी हैं जैसे जिनको मैंने एनकाउंटर किया, सम ऑफ माई सीनियर्स जो जॉब भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा रिसर्च पेपर्स, बुक्स वो भी पढ़ रहे हैं, एंड दे आर डूइंग सो मेनी स्टफ इन ऑर्डर टू अपस्किल देमसेल्व्स। तो उस चीज़ में वो लोग सिर्फ वहीं पे फोकस्ड है कि मेरा एम यही है टू बी बेस्ट एट व्हाट आई डू, बट उसके लिए मैं 3 अलग चीज़ें एक ही साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक टाइम पे, अपने पूरे दिन में 3 चीज़ों के लिए मैं टाइम निकाल रहा हूँ। सो ये जो कन्फ्यूजन है कि हाँ हमें वर्क हमारा काम ही है, सिर्फ हम काम करते रहेंगे, हमारा बॉस के हम खुश करते रहेंगे तभी हम इम्प्रूव होंगे, ये कन्फ्यूजन क्यों लगता है आपको कि लाइक ये कन्फ्यूजन एक तरह से आज के यूथ में आ रहा है? एंड उसको अगर आपको अगर सजेस्ट करना हो, लाइक लेट्स से अगर मैं एक एचआर मैनेजर बनना चाहता हूँ और मेरा ये थिंकिंग है, तो आपको अगर मुझे सजेस्ट करना हो और आप चाहते हो कि ये थिंकिंग में एकदम हटा दो, तो आप कैसे लाइक मुझे बोलोगे, आप क्या प्रैक्टिस मुझे बोलोगे, क्या करने बोलोगे इन ऑर्डर टू चेंज दैट कंप्लीट? सो सबसे पहले तो पपेट्स होना बंद कर दो। जितने भी लोग अभी जॉब में है ना, सब पपेट्स है। और पपेट्स होने का सबसे बड़ा कारण है कि वो सेल्फ बिलीफ नहीं है, उसको डिसीजन मेकिंग स्किल नहीं है, उसको डर है कि मैं खुद से डिसीजन लूंगा, मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या करूंगा, मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, मेरी बीवी क्या कहेगी, बहन भाई क्या कहेगा, वो 4 लोग क्या कहेंगे, और उसकी वजह से डिसीजन नहीं ले पाता। दूसरा, मैंने अभी एक वास्तु कंसल्टेंट को कहा था, उन्होंने बहुत प्यार से मुझे ऐसा कुछ कहा था कि वेस्ट जोन या ईस्ट जोन में बैठ जा। तो मैंने कहा यार ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन, नॉर्थ जोन, चारों दिशाएं वर्क कर सकती है, वैसा मेरे पास एक वास्तु का फॉर्मूला है। तो वो शॉक हो गया और बोले ऐसा क्या है? तो मैं कहा एक ही चीज़ है, एक जोन तोड़ना पड़ेगा, चारों जोन वर्क करेंगे। तो उसने पूछा कौन सा? तो मैं कहा कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन तोड़ देगा ना तो कोई वास्तु की, कोई न्यूमरो की जरूरत नहीं है, वो चारों जोन आपको आप काम करेंगे। बट मैं कंफर्ट जोन में रहना चाहता हूँ। मैं इतना बिजी हूँ ड्राइव करते हुए कि मैं बोलता हूँ यार पेट्रोल पंप पे खड़ा रहूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। I mean, it's an utter nonsense. You are so busy driving that you do not have time to refuel your car. Then how would you go miles and miles? So you have to be calm, composed. You have to understand कि भाई रुक, तेरे को जो स्किल चाहिए वो स्किल अडॉप्ट कर, उसमें टाइम डाल. That's a fuel. Now, if you refuel, if your tank is full, you can walk more miles. If you do not, your car is going to stop. So that is very simple कि यार रुको. कंफ्यूजन क्या है? So ये तो सॉल्यूशन है कि यार मेरा टाइम टेबल बनाया, जॉब इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, इट इज नॉट लाइफ. सो वो 8 घंटे डेडिकेटेडली अगर जॉब को दिए, जो मेरी एक सोर्स ऑफ इनकम है, वो मेरी जरूरत है. अब मुझे इवॉल्व करना है तो वो 8 घंटे के अलावा
मेरे पास जो 16 घंटे है मैं उसमें सीखूं, लर्न करूं, नया स्किल लूं, स्ट्रगल करूं, जो करना है करूं, लाइफ को एंजॉय करूं, हॉबीज, फ्रेंड्स, फैमिली, एंड दैट्स वेयर यू लिव लाइफ. दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट योर लाइफ. तो कन्फ्यूजन नहीं है, सॉल्यूशन है. इवॉल्व होना पड़ेगा तो हाँ, नया सीखना पड़ेगा तो हाँ, और उसके लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा तो हाँ. वाओ. तो 2 टाइम क्यों ऐसा सोचते हो? 8 घंटे सोएंगे, 8 घंटे खाएंगे और 8 घंटे जॉब करेंगे. इनफैक्ट जॉब भी कर रहे हो तो यार 8 घंटे नहीं 16 घंटे करो, क्योंकि तुम जो कर रहे हो वो तुमको आ रहा है और तुम डिलीवर कर रहे हो 8 घंटे में. क्योंकि कंपनी तुमको 1 लाख दे रही है तो तुमसे 2 लाख का काम करवाएगी. तो तुमने नया क्या सीखा? अब नया सीखना है, मैनेजर बनना है, तो वो 8 घंटे मैनेजर के साथ बैठना पड़ेगा जो कंपनी तुमको फ्री में ट्रेन कर रही है. वरना ट्रेनिंग के तो लोग पैसे लेते हैं. तो वो सीखोगे तो कल प्रमोशन तुम्हारा होगा और तुम आगे बढ़ोगे. पर मैं तो हूँ तो आटलाમાં આટલું જ करूँ तो तुम जिंदगी भर वही करोगे. तुम एंड में गए, ना भुगता ना कुछ किया, वही 50, 60, 70 हज़ार कमाया और जिंदगी में आए, जिंदगी से चले गए, कुछ नहीं उखाड़ लिया. You mentioned about refueling yourself when you are working and to always update yourself एक तरह से. So अगर वो हम कैसे कर सकते हैं? आज के डेट में there is so much of so many resources आज के डेट में because of internet. इतना कुछ है, क्या सही क्या गलत ये हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते. करेक्ट. तो ऐसे केस में आप कैसे सजेस्ट करोगे? अगर मैं एज अ स्टूडेंट आपसे पूछूं कि सर मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, मुझे काम करना है, मैं सब कुछ करने को रेडी हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि किस डायरेक्शन में जाऊँ, तो आप वो कौन सा डायरेक्शन बोलोगे? और वो डायरेक्शन या तो ढूंढने के लिए आप क्या बोलोगे मेरे को? कुछ नहीं यार, बहुत इजी है और बहुत सिंपल है. पर इतना सिंपल होने के बावजूद भी कोई नहीं करेगा. मैं आपको ये बोलूँ कि अगर आपको मैं 350 घंटे 1 साल के ज्यादा दूं तो आप क्या ही कर लोगे? एग्री? बहुत कुछ कर सकते हो. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. सो 350 आवर्स और 400 आवर्स इन अ ईयर कैन बी बाइड. हाउ? सो आई आस्क द सेम क्वेश्चन टू माई मेंटोर कि यार टाइम का प्रॉब्लम है, सबको टाइम नहीं मिलता. तो बोले सब बकवास है. तो जितने भी बजे उठता है ना जिंदगी में, 1 घंटा एक्स्ट्रा जल्दी उठना चालू कर दे, सिर्फ 1 घंटा. 10 बजे उठता है 9 बजे उठ, 9 बजे उठता है 8 बजे उठ, 5 बजे उठता है 4 बजे उठ. सिंपल. अब मान लो आप 8 बजे उठते हो, आप सुबह 4 बजे उठने लगो, तो 4 आवर्स अ डे इंटू 365 कर लो, क्या हो गया? यू कैन क्रिएट मिरेकल्स. यू हैव 1 मोर, पूरा एक एक्स्ट्रा जन्म मिल गया आपको. अब लोग बोलते ऐसा नहीं होता. अब मुझे ऐसा समझाओ, ऐसा कैसे नहीं होता? आप सिर्फ 3 रीजंस बताओ ऐसा ना होने के, आपको नहीं मिलेंगे. द पॉइंट इज ऐसा नहीं करना. तो अगर आप जल्दी उठोगे, जैसे मैं 4 बजे उठता हूँ और मैं 9:30 बजे तक तो फ्री हो जाता हूँ, तो ये वाला फॉर्मूला सबसे बेस्ट है. दूसरा, या फिर 3 चीज़ें बता देता हूँ. पहला, जल्दी उठ जाओ, कुछ भी हो जाए जिंदगी में उठ जाओ. दूसरा, बुक्स पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि बुक्स पढ़ोगे ना तो जिंदगी का कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो पहली बार आपके साथ हुआ हो. इनफैक्ट जिंदगी नहीं, यूनिवर्स में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो पहली बार आपके साथ हो रहा हो. किसी ना किसी के साथ हो गया है, उसने उसको ट्रांसलेट कर लिया है वर्ड्स में और बुक्स में लिख दिया है. तो यार आपको तो बैठे बैठे फॉर्मूला मिल गया. सो बुक्स पढ़ो. और तीसरा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यार आप एक शांत नदी को देखो और आप अपना चेहरा उसमें देखना चाहो, क्लीन वाटर हो, शांत नदी है, तो आप देख पाओगे, राइट? पर उसमें पत्थर मारोगे तो आप देख पाओगे? नहीं, वो वेव्स आएंगे. सो नाउ लेट्स कंसिडर दिस नदी एज योर माइंड. अब आपका माइंड शांत होगा ना तो आप अपने गोल्स, अपनी लाइफ को बिगर, लार्जर देन लाइफ पिक्चर देख पाओगे. पर उसमें पत्थर मारा हुआ है तो आप वो वेव्स में इतने तरंगों में बिजी हो कि आप वो देख नहीं पाओगे. सो माइंडसेट आपका यही है. इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है. देयरफॉर मेडिटेशन. तो बच्चा हो, बूढ़ा हो, एंटरप्रेन्योर हो, जॉब क्लास हो, स्टूडेंट हो, जिंदगी में कोई भी हो, 3 चीज़ें. नंबर 1, मेडिटेशन, मेडिटेशन, मेडिटेशन कंपल्सरी. सेकेंड इज बुक रीडिंग, 100% कंपल्सरी. और तीसरा, एक स्पोर्ट्स खेलना पड़ेगा. उससे डोपामिन रिलीज होगा, अचीवमेंट की फीलिंग आएगी और इंस्पिरेशन बना रहेगा. अगर ये 3 चीज़ नहीं करते हो तो आपकी लाइफ वेस्ट है. ओके, सो लेट मी ऑल्सो ऐड, पहले ये टू डू लिस्ट हुआ करता था बहुत सालों पहले. अब नॉट टू डू लिस्ट बनाना ज़रूरी है. और सबसे पहले इंस्टाग्राम को लिमिट करो. क्योंकि यार आपको, मान लो आप कितने भी सॉर्टेड हो, अगर मैंने आपको गाली दी तो आपको थोड़ा सा इफेक्ट तो होगा ही होगा. तो सेम वे ब्रेन तो कंज्यूम कर ही लेगा. इंस्टाग्राम ऐसी चीज़ है ना जो बहुत सारी चीज़ें डालती है जो आप कंज्यूम कर लेते हो, जो आपके काम की नहीं है. और वहाँ से डिप्रेशन और एग्जाइटी आता है. अरे मेरा फ्रेंड बाली, जैसे मेरी बीवी बोलती है, अरे
બધા બાલી ફરવા ગયા આ વખતે. તો મેં કીધું બધા એટલે કોણ? તારામાં તો 100 કોન્ટેક્ટ છે અને એમાંથી એક જણ ગયો તો એક જણ બધા થઈ ગયા. नाउ दैट्स वेयर शी गॉट इन्फ्लुएंस्ड. नवरात्रि में मेरा 1.5 लाख रुपए का खर्चा होता है 9 दिन का. कैसे? तो वो कुछ वाइट इश्क या सफ़ेद इश्क का है जिसका 5,000 का तो पास है, 9 5 45,000. फिर वो खाना बाहर होता है तो 2,000 का बिल होता है, तो 18,000 खाने का हो गया, 5,000 पेट्रोल का हो गया. और बॉस मैं एक कपड़ा रिपीट तो नहीं कर सकती, इट्स अ क्राइम. तो 5,000 इंटू 9 45,000 के तो कपड़े हो गए. और किया क्या? सफेद इश्क के बोर्ड के नीचे एक नया कपड़ा पहन के फोटो खिंचाया. नवरात्रि तो खेली नहीं. नाउ दैट इज इन्फ्लुएंस. अगर वो नहीं करूंगी तो मैं लीग में पीछे रह जाऊंगी. अब ये सब जब कंज्यूम करोगे ना तो आप अपना गोल भूल जाओगे. तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करना बंद कर दो. दैट्स अ नॉट टू डू लिस्ट. वाह, दैट्स फॉलोइंग अप विद दैट. आपने बताया कि एक पर्सनल लाइफ के लिए ये चीज़ें आप करेंगे देन यू विल बी हैविंग अ मच बेटर पर्सनल लाइफ, व्हिच आई स्ट्रांगली अग्री विद. हैविंग दिस कॉन्वर्जेशन विद यू, आई गेस मेरे को भी नया नज़रिया मिला कि मैं एक लाइफ को एक थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल से आज देख पाऊंगा. ये एक आज की मेरे लिए सीख है कि मैंने एक बहुत ही अलग टाइप जैसी चीज़ें आपने कहा, आप रूल्स के अगेंस्ट एकदम रूल ब्रेक करके आज आपने जो चीज़ें बोली उससे मैंने काफ़ी नई चीज़ें सीखी. एंड नाउ ये तो चलिए एक पर्सनल लाइफ की बात हो गई, विच आई गेस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर मेकिंग अ सक्सेसफुल HR मैनेजर. बट लेट्स से कि यू आर इंटरव्यूइंग एन HR समवन फॉर द पोस्ट ऑफ HR मैनेजर, देन आप आज के डेट में व्हेन देयर इज डिमांड फॉर सो मेनी डिफरेंट स्किल्स, आप क्या देखोगे उस आदमी में कि हाँ अगर मैं किसी HR मैनेजर को ले रहा हूँ कि हाँ मैं तुझे ये टीम दे रहा हूँ, तुझे इसे संभालना, यू हैव टू मेक इट द बेस्ट टीम एवर, आप उसमें क्या देखोगे कि मुझे इसमें बंदे में ये चीज़ तो चाहिए ही चाहिए? मैं 3 चीज़ देखूंगा. पहला वाला आखिरी में बोलता हूँ, दूसरा वाला है ह्यूमन कनेक्ट, तीसरा वाला है डाउन टू अर्थ. और पहला वाला ये है कि पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ जो ये बोले कि वो सब नहीं होता, एक ही लाइफ है. अब ये कॉन्सेप्ट आप मुझे बताओ कि पर्सनल और प्रोफेशनल अलग कैसे हो सकता है? आप तो वही हो, तो आपकी लाइफ भी वही है. तो आपकी जो लाइफ है वो लाइफ है. अब वो लाइफ इज जस्ट वन वर्ड. अब उसको पर्सनल बोलो और प्रोफेशनल बोलो, वो डेफिनेशन ही गलत हो गया. मतलब हाउ कैन यू हैव अ पर्सनल लाइफ एंड हाउ कैन यू हैव अ प्रोफेशनल लाइफ? सो रतन टाटा जी इज इक्वल टू टाटा, तो टाटा इज लाइफ, तो लाइफ इज लाइफ. अब हाउ कैन इट बी पर्सनल एंड प्रोफेशनल? सो माई पर्सनल इज प्रोफेशनल एंड वॉट एवर आई डू प्रोफेशनली इज समथिंग विच इज रियली पर्सनल एंड देयरफॉर इट इज लाइफ. तो बहुत सिंपल है ना यार. तो इसको इतना कॉम्प्लेक्स क्यों कर दिया कि पर्सनल लाइफ और ना प्रोफेशनल लाइफ? सो 10 થી 7 હું गुलामी करीश, दैट्स प्रोफेशनल लाइफ. और 7 से 10 मैं फ्रेंड्स के साथ खेलूंगा, वो मेरी पर्सनल लाइफ. ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता. सिंपल है कि यार आप काम करते हो, आप काम करते हो, आप 24/7 काम करोगे, दैट्स लाइफ. अब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो? मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा. सो इट इज़ लाइक कि एक आटे के अंदर मैं ये ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कौन से गेहूं से बना था, कौन से खेत के गेहूं से ये आटा पीसा हुआ है. नहीं हो सकता. आटा आटा है, दैट्स इट. लाइफ लाइफ है, दैट्स इट. अब उसको प्रोफेशनल पर्सनल में मैं डिवाइड नहीं कर सकता. मतलब एक HR मैनेजर के सामने कोई आया और बोलता है कि यार मेरे को लाइफ में ज़बरदस्त प्रॉब्लम है, और वो आदमी उसके सामने रो रहा है, और एक HR मैनेजर ऐसा बोलेगा, अरे 7 बज गए बॉस, अब तू नहीं रो सकता, ये तो तेरी पर्सनल लाइफ स्टार्ट हो गई. तेरी गर्लफ्रेंड के साथ तेरा ब्रेकअप हुआ है तो तू 10 से 7 में तो नहीं रो सकता, क्योंकि तू तो जॉब पे है और वो तो तेरे को इफेक्ट नहीं करना चाहिए. तो तू काम कर. हाँ, 7 बजे बाद एक काम कर, तू रो. पॉसिबल? नहीं पॉसिबल ना, क्योंकि ह्यूमंस आर अटैच टू इमोशंस. तो कैसे करोगे पर्सनल प्रोफेशनल? अगर वो क्रैक कोड कोई मेरे को बता दे तो आप बोलो वो मैं करने को तैयार. स्टूपिड कॉन्सेप्ट है. मतलब मेरे बॉस ने मुझे डांटा और मेरी बीवी का फ़ोन आया. बॉस ने मुझे 6:59 को डांटा, मेरी बीवी का फ़ोन आया 6:59 और 50 सेकेंड्स पे, और मैं बीवी पे चिल्ला रहा हूँ, यार तू क्या है यार, क्या खाना बनाना है, रोज़ एक का एक क्वेश्चन पूछती है, और मैं तो फ्रस्ट्रेटेड हूँ, बॉस ने डांटा है. टडंग 7 बज गए. अरे डार्लिंग, तेरे को जो खाना बनाना है बना. मेरी पर्सनल लाइफ चालू हो गई यार, प्रोफेशनल लाइफ तो गई. पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है. तुम ओवरलैप करोगे ही करोगे. तुम ऐसा 7 बजे, ऐसा कोई बटन नहीं है कि तुम्हारे इमोशंस को तुम डाल के चेंज हो जाओ. तो इट इज़ लाइफ. पर्सनल प्रोफेशनल नहीं होता, इट इज़ लाइफ, सिंपल. तो जो लाइफ को समझ पाए, जो लोगों को समझ पाए, जो समझ पाए कि लोगों की लाइफ भी लाइफ है, वो HR मैनेजर में ढूंढूंगा, वो क्वालिटी में ढूंढूंगा.
नाउ एक सवाल और आपके लिए जो अभी एकदम लाइक मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं कल से ये सोच रहा था कि ये चीज़ तो मैं पूछूंगा ही पूछूंगा आपसे। रिसेंटली मुझे हार्दिक भैया ने बताया था आपके बारे में कि आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है टाइम मैनेज करने का, दैट इज गूगल कैलेंडर, Correct. वो शेड्यूलिंग, एंड आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड इट। Correct. बहुत हेल्प हुई है मेरी, मैं ऑनेस्टली बोलूँगा। मेरा टाइम के रिलेटेड, अब मेरी टीम जानती है मेरे टाइम के रिलेटेड इश्यूज, एंड आई विल नॉट इलैबोरेट ऑन इट वरना मार पड़ जाएगी मेरे को। बट द पॉइंट इज कि that time management is also, I guess, very much needed in today's day and age, because if I have to take myself only as an example, वो बहुत मुश्किलें देती है, बहुत दिक्कतें देती है। I have faced myself and now I've started working on it. I guess बहुत चीज़ें उसने मेरे लिए भी कम कर दी कि like अब बहुत issues मेरे कम हो गए हैं and life has been improving very well, and that's something my parents have also said कि work करो, and I have been trying, but I guess right now in a right direction I'm moving, although I'm working on it. बट वो एक चीज़ है जिस पे अभी आई एम स्टिल ट्राइंग टू गेट कमांड, एंड आई बिकॉज आई एम ट्राइंग टू गेट कमांड आई नो द वैल्यू ऑफ इट। ये चीज़ आपके अंदर एक आपने कैसे डेवलप की, या इट वाज सम टैलेंट दैट यू आर हैविंग फ्रॉम फॉरएवर? नहीं यार, इट इज़ नॉट अबाउट टाइम मैनेजमेंट, इट इज़ अबाउट प्रायोरिटी मैनेजमेंट। अभी ये कोई कुछ भी कर रहा हो दुनिया में और उसको पता चले कि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया, आईसीयू में एडमिट है, तो वो क्या करेगा? पहुंचेगा वहाँ पे टाइम से, जल्दी पहुंचेगा। तो वो भाई को टाइम मैनेजमेंट तो आता ही है, पर प्रायोरिटी मैनेजमेंट नहीं आता। उसकी फ़्लाइट है 10 बजे की, तो वो 9 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाता है ना। कभी फ़्लाइट मतलब 100 में से शायद एक फ़्लाइट मिस करी होगी, तो वो कैसे हुआ? तो टाइम मैनेजमेंट तो आता ही है, पर अभी काम करना है तो प्रायोरिटी नहीं है। बोले ठीक है आज वाला कल होगा। सो दैट कैजुअल अप्रोच इज समथिंग विच इज़ नॉनसेंस। सो वंस यू डिलीट दैट कैजुअल अप्रोच फ्रॉम यू एंड स्टार्ट टेकिंग थिंग्स विद रिस्पेक्ट, टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। और दूसरा एक फॉर्मूला मैं देता हूँ, आई थिंक दिस विल बी समथिंग विच वुड बी ग्रेट फॉर द ऑडियंस। मैं अगर आपको पूछूं कि आपके पास कितने रुपए हैं, तो आपके पास उसका क्लियर कट आंसर है। मान लो ऐसा कुछ फिगर डालते 1 करोड़ रुपए। ओके, क्या आपके घर का खर्चा आपको पता है? आपको अपने आप में कितना इन्वेस्ट करना है? मोस्ट ऑफ द पीपल वुड नो। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा, इस ऑफिस का रेंट क्या आएगा, मोटा मोटी आपको सब हिसाब पता है। तो हिसाब करते हो ना आप, और कभी इन्वेस्ट करते हो तो अंडरस्टैंड करते हो कि इन्वेस्ट कर रहे हो या एक्सपेंडिचर कर रहे हो। तो सेम वे अगर मैं आपको पूछूं कि आपकी मिनट्स इन लाइफ भी तो लिमिटेड ही है ना, तो अब वो टाइम के बैंक अकाउंट में है, तो आप उसका हिसाब क्यों नहीं रखते हो? जिस दिन वो हिसाब रखना चालू हो गया, आपका आरओआई बढ़ गया, एज सिंपल एज दैट। अब मैं 10 बजे तक इसलिए सो रहा हूँ क्योंकि मैंने कभी अपने टाइम को वैल्यू ही नहीं किया। मेरे पास 1 करोड़ है तो मैं 10 लाख की गाड़ी लूंगा, तो मेरे पास अगर 1 करोड़ मिनट्स है तो उसको मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, उसका हिसाब तो करो। अब वो हिसाब जिस दिन करोगे ना, उस दिन ऑटोमेटिकली सब टाइम मैनेज हो जाएगा। पर कैजुअल अप्रोच है कि ठीक है यार, लाइफ में जैसा चल रहा है चलने दो, इसलिए टाइम मैनेज नहीं हो रहा। तो इसमें कोई टूल की जरूरत नहीं है, इसमें जरूरत सिर्फ ये है चेंज ऑफ एटीट्यूड फ्रॉम कैजुअल टू क्या बोलते हैं, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड, बट या वो अलर्टनेस की जरूरत है उसमें कि मेरा टाइम भी लिमिटेड है, वो अकाउंट में से माइनस हो रहा है, एक एक सेकेंड माइनस हो रहा है। I guess this is also one of the things I very strongly believe this, that all the HR managers and HR people should have really great sense of time management. Like I remember I have done an internship in the HR department, and I'm telling you, like वो internship तो I was not able to do because of my academic commitments, and that is a complete different story. But the thing is, वहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी कि people were very very conscious about that time, and वो time की value I guess कहीं ना कहीं मैंने वहाँ से सीखी, and that is the point where I realized कि okay, I have to value my time more, and I started working on that, and I'm still working. But yes, it's I guess good things take time, and I'm believing in that, and that's why I'm trying every day, everything new I'm improving myself. Every day I'm trying to be a better version of myself. Not saying I am, but I know I'm giving the effort to be. So I'll add to this. If I ask you that you have to invest your 1 lakh rupees versus you have to spend, expenditure करना है, 2 चॉइस है आपके पास, आप क्या करोगे? इन्वेस्ट करोगे, करेक्ट। तो आपका टाइम आपको स्पेंड करना चाहिए, मतलब एक्सपेंस कर देना चाहिए, या इन्वेस्ट करना चाहिए? इन्वेस्ट करना चाहिए। सो अब आपके पास 2 चॉइस है हमेशा ही लाइफ में, कि टाइम तो लिमिटेड है, अब उस टाइम में आप जिम जा सकते हो, दैट्स एन इन्वेस्टमेंट, और उस टाइम पे आप सो सकते हो, दैट्स एन एक्सपेंडिचर। सो व्हाट इज दैट यू वांट टू डू? I want to invest money. So most of the people
डू नॉट डू इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, दे स्पेंड टाइम, मतलब एक्सपेंडिचर कर दिया। और ये ऐसा है कि पैसा तो वापस आ सकता है, टाइम नहीं आएगा। अब इतना सा तफावत समझ जाओगे ना तो टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और एक मैं बहुत अच्छा मैट्रिक्स देता हूँ आपको, ये आपको हेल्प करेगा। सो इट्स अ ब्यूटीफुल मैट्रिक्स इन्वेंटेड बाय समवन विच इज अ डू, डिसाइड, डेलीगेट एंड डिलीट मैट्रिक्स। सो आपको जो करना है ना उसको डू में लिख लो। अब उसके लिए 1 मिनट भी मत बिगाड़ो, क्योंकि वो करना है तो करना है, तो अभी करो ना, कल क्यों। दैट्स योर डू। सर्टन थिंग्स आर डिसाइड, लाइक मान लो कि मेरा एक एस्पिरेशन है, सपोज मुझे हेलीकॉप्टर लेना है, और मैं अपने इनकम को कैलकुलेट करके ऐसा सोचूं कि 2032 में मैं हेलीकॉप्टर लेने लायक हो जाऊंगा। अब मुझे पता है मैं आज नहीं ले पाऊंगा, पर पेपर में ऐड आई कि हेलीकॉप्टर एट 50% डिस्काउंट। तो अब मेरा मन चंचल है, तो मैं क्या करूंगा, बीवी को बोलूंगा चल देख के आते, कलर देख के आते। मैं वहां गया, 3 घंटे बिगाड़े, पेट्रोल बिगाड़ा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगा। फिर मैं घर पे आके बोला कि यार पर यार मैं 2032 तक तो नहीं ले पाऊंगा। अब वो तो मुझे पता ही है। अब हमेशा हम उस चीज़ों में टाइम वेस्ट करते हैं, करते हैं और करते हैं। उसका सिंपल फॉर्मूला है, डिसाइड के कॉलम में डाल दिया, 2032 जनवरी हेलीकॉप्टर, उस दिन मैं सोचूंगा, तब तक नहीं। सो नाउ माई लॉट ऑफ थिंग्स गेट इनटू द डिसीजन कॉलम विद डेडलाइंस। सो दैट मीन्स मेरे को वो डू नहीं करना, उसमें मैं टाइम नहीं बिगाड़ूंगा। सर्टेन थिंग्स आर डेलीगेशन। सो स्पेशली फॉर एंटरप्रेन्योर्स, सर्टेन इज अ रॉन्ग वर्ड, 90% ऑफ द थिंग्स कैन बी डेलीगेटेड। तो उसको मैं डेलीगेट करूं, मेरे को नहीं करना। एंड देन देर इज अ ब्यूटिफुल कॉलम ऑफ डिलीट। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। सो मेरा वार्डरोब अगर आप मेरे घर पे आके देखोगे तो पूरा अस्त व्यस्त होगा। क्या वो मेरे को अपने गोल की तरफ ले जा रहा है? नहीं ले जा रहा। तो सिंपल, मेरे डिलीट कॉलम में कुछ भी हो जाए, मैं क्यों करूं उसमें टाइम इन्वेस्ट। हाँ, बट मेरी वाइफ के डू कॉलम में हो सकता है, क्योंकि उसको वो अच्छा लग रहा होगा। सो देन वंस यू आर क्लियर विथ योर डिलीट्स कि ये कुछ चीज़ है, जैसे कि मेरे लिए सोशल्स इज अ नो नो। मेरे कजिन की शादी भी होगी, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं नहीं जाऊंगा फिर भी वो शादी तो करेगा ही। तो मेरे को नहीं जाना। दैट्स माई डिलीट कॉलम विच इज क्लियर। सही गलत नहीं बोल रहा, डिलीट तो डिलीट। तो डू, डिसाइड, डेलीगेट, डिलीट का जब क्लैरिटी कर लोगे ना, तो बहुत सारा टाइम तुम वहाँ इन्वेस्ट करोगे जो तुमको तुम्हारे गोल की तरफ ले जाएगा। सो दैट्स हाउ पॉसिबल यू मैनेज टाइम। एंड देन यस, आई यूज अ डेली डायरी। अब लोग बोलते हैं उसमें लिखने का क्या, मेरे को तो याद रहता है। ऐसा नहीं होता। सिंपल क्वेश्चन, तुम गाड़ी या बाइक चलाते हो, बताओ कितने लोगों को याद है कि तुम्हारा पीयूसी का रिन्यूअल डेट क्या है? नहीं पता। कितने लोगों को पता है इंश्योरेंस रिन्यूअल क्या है? नहीं पता। अब वो मान लो 16 जून को है, मैं आज जनवरी से ही 14, 15, 16 जून में लिख लूँ रिन्यूअल ऑफ माई कार्स पीयूसी, तो क्या मैं जिंदगी में भूलूंगा? नहीं भूलूंगा। टाइम मैनेजमेंट सिंपल, करो डेली डायरी। वी हैव अ स्पेशल प्रोग्राम वेर इन वी टीच डेली डायरी टू लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर स्टूडेंट्स एंड पीपल, एंड इफ दे नीड सम हेल्प आई कैन डेफिनेटली हेल्प देम। एंड यू नो आई सो मच अग्री ऑन दिस, बिकॉज मेरी ना एक ये काफ़ी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि आई रियली लाइक टू टेक नोट्स एंड इट हैज़ हेल्प मी सो मच ना ओवर टाइम। बहुत जगहों पे आई नेवर थॉट, मैंने बहुत चीज़ें लिखी थी, बहुत चीज़ें पढ़ के लिख दी थी। आई रिमेंबर इन स्कूल दिस हैपेंड, 12th में आई हैव रिटन एन आर्टिकल अबाउट, मेरे को ऐसा बहुत सारा शौक कि मैं कोई कंसेप्ट पढ़ूंगा, उसके बाद मैं अपने वर्ड्स में लिखूंगा। मैंने लिखा, एंड वी वर हैविंग दिस साइंस प्रोजेक्ट दैट इन फिजिक्स वी हैव टू सबमिट अ प्रोजेक्ट। एवरीवन वाज हैविंग दैट सिंपल टेम्पलेट वाला कि हाँ ये करेंगे, एंड सबका ऑलमोस्ट सिमिलर था। आई डोंट नो, समवेयर दैट वाज रिटन, एंड मेरे दिमाग में भी था कि मैंने हाँ ये लिखा है ये प्रोजेक्ट के बारे में, कि मैंने ये कहीं तो पढ़ा था, एंड इट्स नॉट वेरी नोन, बट आई रेड अबाउट दैट एंड आई मेड इट, एंड इट हेल्प्ड मी सो मच। माई प्रोजेक्ट स्टूड आउट। आई रिमेंबर वो डिवाइस भी, आई रिमेंबर द नेम ऑफ द डिवाइस, दैट इज रॉकेस्टर क्लोकिंग डिवाइस। इट वॉज अ क्लोकिंग डिवाइस विच वॉज मेड बाय हाउस होल्ड मटीरियल्स, वेरी सिंपल, वेरी इजी टू मेक, बट सो गुड। इट वॉज बहुत ही यूनिक, वो स्टैंड आउट किया, उसने मुझे एक तरह से बहुत काइंड ऑफ डिफरेंट, मेरे को एक स्टैंड आउट दिया, एक मेरे अलग ही पर्सनैलिटी बना दी। उसने मेरे स्कूल में काफी हेल्प किया, एंड प्लस आई गॉट लॉट ऑफ eyeballs and attention as well. So एक वो चीज से तो आई डेफिनेटली अग्री, नोट्स है like, and talking about notes, right now we are almost at the end of this podcast, although अब इस conversation के बाद मेरे दिमाग में और भी चीजें हैं which I would really love to discuss with Hemal sir, but again time is, today I'll not say our enemy. Time is an investment. Time is something that we have to respect of yours, of so's, and of everyone over here. And I wish that I could have taken this conversation much more longer, but again, we have to respect time. So when we talk about time, I'll give you an extraordinary formula. You can create a small reel out of it. So we have invented something which is known as a PASS concept, PASS.
So all my 60 teammates, all the entrepreneurs whom I coach and all the people around me know this PAS concept. So हम लोग क्या करते हैं, जब भी बात करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं और फ्लिप हो जाते हैं. जैसे मैं बोलूँ कि यार मैं कल लखनऊ जा रहा हूँ, तो बात कुछ ऐसी आ जाएगी, अच्छा लखनऊ में तो ये चीज़ देखने जैसी है, वॉट एवर. Now, is this required at this point in time? Number one, does this fit into this agenda of the meeting? If not, then any one of us respectfully would say a pass. That means वापस आ जाओ, ये कभी और डिस्कस करेंगे. Now, इससे हमको इतना हेल्प हुआ है कि मेरी जो भी 60 लोगों की टीम है, सो हम लोग इसको मेजर कर रहे थे. सो वी वर एबल टू इंक्रीज अवर एफिशिएंसी बाय 58%, विच इज मेजरेबल. सो टीम आई, बात किया, 1 मिनट का काम है, 1 मिनट बात किया. अब जैसे ही कहीं और बात निकली, कोई भी रिस्पेक्टफुली बोल देगा पास, मतलब बॉस इसकी जरूरत नहीं है. तो हम लोग सिर्फ एजेंडा को स्टिक करते हैं, एंड दैट्स हाउ 58% 57% प्रोडक्टिविटी हमने लास्ट मंथ में इंक्रीज कर लिया है. तो आप कभी भी किसी से बात करो, यू कैन यूज अ पास कॉन्सेप्ट. हाँ, बट सिर्फ घर पे बीवी के साथ मत करना, क्योंकि मैंने जब बीवी को बोला पास तो बोले फेल, बैठ जा. बट अदरवाइज इट वर्क्स. Okay, early learnings. Chalo. But no, it was an exciting conversation, and now we are at this. Before wrapping up, we are having this exercise that, as I have mentioned in the episode, that we were doing. So I have taken my notes. You have your notes. So would you like to start? I love you to start. Okay. Yeah. Okay. So from what I have got to know about you from this time that we have spent, I have first one, so I've said that you have a very passionate person and a very deep person who's having that, like एक kind of spirituality भी है आपके अंदर अंदर एक calmness भी है, and also but you are also having this कि हाँ, I have that passion कि I have to do this and I will do it, and you are also like very much adaptable from your experiences that I have heard. आप में वो adaptability है, आप में teaching sense बहुत है, because I asked about time management. Personally, I'll be very honest, ये कहीं ना कहीं मैंने अपने लिए भी पूछा, बिकॉज मुझे सही में जानना था इसके बारे में. एंड द वे यू टॉट इट टू मी विच शोज कि इट लाइक वो मेरे को कहीं ना कहीं एक सेंस आ गया कि हाँ, ही इज अ ग्रेट टीचर, ही इज समथिंग दैट वी नीड इन टीचर्स, दैट इज हैविंग दैट मेंटरशिप वाला थिंग. नेक्स्ट थिंग दैट आई फील इज कि आप बहुत ज्यादा बोल लो. व्हेन यू सेड ना दैट वर्क लाइफ बैलेंस थिंग इज स्टूपिड, आई वाज लाइक डैम, that is a statement that could be very, like people would hesitate to say them even if they know it. So this is something एक वो कहीं ना कहीं risk taking वाली भी ability मुझे दिखाती है, and along with that optimism also आपको show करता है. And I think you're a person who's having a great level of self awareness, and you are like very clear from inside out. I guess meditation is something that is contributing to that. Reading and meditation, I say. Yes, very clear you are about you, and you are know कि हाँ, मेरे को ये करना है and मैं ये करूँगा. That's something that I have figured out from the conversation that we have had. How much right I am, that is, you can let me. All right. So I would say you are good at observation. So I'll say 3 things. One, you are good at observation. You're honest, and that's good because you would have a great learning curve once you. So it's like 3 steps. First is awareness. Second is acceptability, and third is action. So you already have you awareness है, acceptance है, तो अब क्या होगा, action होगा, और action होगा तो evolve होंगे. That's good. And yes, you can connect the dots very well. So that's something which you should keep doing. Keep inspiring the world. Keep calling great people, and keep passing on the messages to a lot of people so they can evolve, learn, and grow. Thank you so much. So that means a lot. And yes, I mean, today's podcast is, like, I guess this exercise and this conversation is something very different that I usually do, and I guess आज मैंने काफी कुछ सीखा. ये एक podcast की, I say this in every podcast, and today also I'll say this because it is needed to be said that in every podcast, in every episode, in every conversation, I get to learn something. Today also I learned so many things. It's an experience that I'm privileged to have somewhere, and I guess conversations really help you to learn so many more things. So yeah, I guess that's my learning for today. That's something I'm very thankful for. Thankful to you guys. Thankful to my awesome listeners who gave me this opportunity to sit here, to interact with so many, like bright minds who are having this sense of innovation in them. So I'm very thankful for that. And I guess on that note, only we would like to end the podcast. But before going, before we end, yes. Any message for them? Yeah. 2 important messages. So one, why do you feel that this podcast is really different? The only reason is, so a lot of people speak
what they read, what they heard. But so this is something someone said for me, and I found it to be true, that I have lived that. So, like if I read a book and I speak, it comes from my tongue. But when I read a book, I build an empire, I grow my company, I help people, and I live that. It comes from heart. So that's the major difference here. And the last thing I would love the audience for today to implement is very, very important, that equality. Okay, please ध्यान से इसको सुनना audience. Equality is not treating people equally. Equality is definitely treating people differently. So if you have a team of 100 people, you treat everyone equal, that's utter nonsense, because performer तो demotivate हो जाएगा. Equality is treating people differently. And yes, so if I have to ask you this, then who is the real Himal Shah? Who is he? Like आपका मैं ये this is the professional side that I've got to know. But apart from that, आप कैसे हो? आप like अपने family के साथ कैसे हो? अपने दोस्त के लिए आप कैसे हो? अपने students के लिए आप कैसे हो? How are you as a person, if you have to say? So जैसे मैंने आपको बताया कि यार प्रोफेशनल साइड आपने अभी वर्ड यूज़ किया, तो यार प्रोफेशनल साइड पर्सनल साइड कुछ नहीं होता. सो द वे यू डू वन थिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग. तो मैं ऐसा ही हूँ, क्लियर, फर्म, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ विजन, speaking what is truth, doing what is right, and that's what I am. May it be personal, may it be professional. So this is what I am. Wow, that's so good to hear, and I mean it's very genuine, I can say. I mean, from what I have got to know about him, so I guess it's very genuine and it's very true. I'm really thankful for this podcast, and yes, thank you so much, Himal sir, for coming up on this podcast, and yes. Thank you so much to all the listeners of ours, to all the wowsome listeners of ours, to tuning into the podcast, and a special thanks to our gifting partner, Bazuki Perfumes, which smells great, which feels great, and yes, I'll recommend every one of you to try it once. It's amazing, and yes, with that, we'll like to wrap up our today's podcast session. Thank you so much, sir. Thank you so much, everyone, and yes, this is your host and those Apurv Shah signing off. I'll see you guys in the next episode. Till then, see you soon. Bye, everyone. And